آج میں جس مووی کی سٹوری سنانے جا رہی ہوں اس کا نام ہے وش اپون۔ 2017 میں ریلیز ہونے والی یہ ایک سپر نیچرل ہارر مووی ہے۔ اس مووی کا جب سٹارٹ ہوتا ہے تو ہم ایک لیڈیز کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک رومال میں کچھ ریپ کر کے آ رہی ہوتی ہیں اور اس کو لا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیتی ہیں۔ ٹریش سین ختم ہونے کے فوراً بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بیٹی گھر سے نکلتی ہے جو کہ سائیکلنگ کرنے کے لیے چلی جاتی ہے، اور جب وہ واپس آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کی ماں نے سوسائڈ کر لی ہے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ سین آتا ہے جس میں ہم ایک 17 سال کی لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے کلیئر، اور یہ کلیئر وہی چھوٹی بچی ہوتی ہے جس نے اپنی ماں کو خودکشی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ کلیئر ایک ہائی اسکول میں ایڈمیشن لے چکی ہوتی ہے اور وہ مارننگ میں سائیکلنگ کرتے ہوئے اپنے اسکول کو جا رہی ہوتی ہے، اور پھر یہ دکھایا جاتا ہے کہ اب کلیئر اپنے والد کے ساتھ اسی گھر میں رہ رہی ہوتی ہے۔ اسکول پہنچتے ہی اس کے والد کو کوڑے دان سے چیزیں اٹھاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ جب کلیئر یہ سب دیکھتی ہے تو اسے اپنے کلاس فیلوز کے سامنے بہت زیادہ امبیرسمنٹ فیل ہوتی ہے، اور اپنے والد کو بنا کچھ کہے وہ اپنی دوستوں کے پاس چلی جاتی ہے۔ کلیئر کی کلاس میٹ ہوتی ہے ڈارسی۔ ڈارسی اس کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہے، اور نیکسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو بلی کر رہی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو سین آتا ہے وہ آتا ہے پال کا سین۔ اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا کرش پال پہ ہوتا ہے لیکن وہ اسے کوئی گفٹ نہیں کراتا۔ پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے والد کو ایک مینشن کے باہر ایک باکس ملتا ہے جس پر چائنیز زبان میں کچھ لکھا ہوتا ہے، لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اس کے ڈیڈ وہ باکس بطور گفٹ کلیئر کو دینے کے لیے اپنے ساتھ اٹھا کر لے آتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول میں کلیئر کی اپنے دوستوں کے ساتھ بہت ہی بری لڑائی ہوتی ہے، اور وہ گھر آنے کے بجائے اپنی پڑوسن کے پاس چلی جاتی ہے۔ جب وہ آتی ہے کہ اس کے ڈیڈ اسے وہ والا باکس بطور گفٹ دیتے ہیں۔ روم میں لانے کے بعد وہ باکس کے اوپر جو چائنیز ورڈز لکھے ہوتے ہیں ان کو پڑھنے کی بھرپور کوشش کرتی ہے، لیکن اسے سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ صرف 7 وشز پوری ہونے کا جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ اسے سمجھ میں آتا ہے کہ 7 وشز مانگی جائیں جو کہ پوری ہوں گی۔ وہ باقی چائنیز ورڈز کو نہیں سمجھ پاتی ہے، اس لیے ان کی پکچرز اپنے پاس سیو کر لیتی ہے تاکہ کسی سے بعد میں پڑھا کے ان کا میننگ کنفرم کر سکے۔ اس کے بعد پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ڈارسی کے پوسٹ چیک کرنے کے لیے کلیئر کے فرینڈز اس کو میسج کرتے ہیں، اور جب وہ اس کا پوسٹ اوپن کرتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس نے جو آج لڑائی کی تھی اس کی پوسٹ، اور اس کے پاس جو اس کے پاپا کوڑے دان سے چیزیں اٹھا رہے تھے وہ بڑی پوسٹ لگائی ہوئی تھی، اور ان پوسٹ کے نیچے لوگوں کے بہت ہی گندے گندے قسم کے کامنٹس آئے ہوئے تھے جس پر اسے بہت غصہ آتا ہے، اور وہ باکس کو اٹھاتی ہے اور وش کرتی ہے کہ ڈارسی جل جائے۔ اس کے بعد جو اس کا پیٹ ڈاگ ہوتا ہے دیکھتے ہیں کہ وہ ڈور کے باہر ہی کھڑا ہوتا ہے، اندر نہیں آتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ سو جاتی ہے۔ رات کو میوزک باکس اوپن ہوتا ہے اور پھر خود ہی کلوز بھی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں جو سین دکھایا جاتا ہے اس میں ڈارسی جلی ہوئی دکھائی جاتی ہے، اور اس کے میسیجز تمام اسکول میں وائرل ہو جاتے ہیں، اور کلیئر بھی ان کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ واقعی میں وہ باکس وشز پوری کرتا ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ وشز پوری ہونے کے ساتھ ہی جو کلیئر کا ڈاگ ہوتا ہے، پیٹ ڈاگ ہوتا ہے، وہ بھی فوت ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ڈے وہ اپنے ایک ٹیچر کے پاس آتی ہے اور چائنیز ورڈ ان کو دکھاتی ہے جو کہ اس کو بتاتے ہیں کہ ان کو سمجھنے کے لیے کسی ایک ماہر بندے کی ضرورت ہے، عام انسان ان ورڈز کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ پھر اس کا ایک کلاس میٹ رائن کے اس کے پاس آتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ اس کی ایک کزن ہے جو کہ اس سلسلے میں اس کی ہیلپ کر سکتی ہے۔ رات میں کلیئر کافی ڈپریس ہوتی ہے کیونکہ اس کو میتھ کی بہت یاد آ رہی ہوتی ہے جو کہ اس کا پیٹ ڈاگ ہوتا ہے۔ اتنے میں وہ پال اور اس کی گرل فرینڈ کی پک دیکھ لیتی ہے جس پہ اس کا ڈپریشن اور زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ ڈپریشن کی وجہ سے اپنی سیکنڈ وش بھی مانگ لیتی ہے، اور وہ یہ وش مانگتی ہے کہ پال اس کی محبت میں گرفتار ہو جائے۔ پھر یہ دکھایا جاتا ہے کہ میوزک باکس خود ہی اوپن ہوتا ہے، میوزک سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد میوزک باکس خود ہی کلوز بھی ہو جاتا ہے۔
और उधर अंकल ऑगस्ट जो कि क्लियर के रिलेटिव होते हैं, नहाते वक्त वॉश टब में गिर जाती हैं जिससे उनके सर में शदीद चोटें लगती हैं और उनकी वहीं पे डेथ हो जाती है। उधर न्यूज़ में क्लियर और उसके पापा को अंकल ऑगस्ट की डेथ की खबर मिलती है और उसके डैड ये विश करते हैं कि मे बी अंकल ऑगस्ट अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा इनके नाम भी करके गए हों, क्योंकि इनके फाइनेंशियल हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। इसलिए अपनी थर्ड विश भी क्लियर मांग लेती है और वो ये विश मांगती है कि सारी की सारी प्रॉपर्टी अंकल ऑगस्ट इनके नाम कर गई हों। नेक्स्ट डे उसके डैड बताते हैं कि अंकल ऑगस्ट की विल के मुताबिक तमाम प्रॉपर्टी क्लियर को मिल गई है। सिस्टर लुका किचन में काम कर रही होती हैं कि अचानक से उनके बॉल डिस्पोजल में अटक जाते हैं। उनकी वहीं पे डेथ हो जाती है। इस तरह म्यूजिक बॉक्स खुद ओपन होता है, क्लोज होता है और क्लियर फर्स्ट टाइम ये सब कुछ देखती है। जीना क्लियर को बताती है कि 7 विशेस के साथ साथ इस बॉक्स पे कुछ रूल भी लिखे हुए हैं, जैसा कि विश मांगते वक्त बॉक्स को हाथ में पकड़ना चाहिए। के बाद बॉक्स को फेंक देंगे तो तमाम प्रीवियस विशेस अनडन हो जाएंगी। इसके साथ ही उन्हें एक एंड पे नेम मिलता है। क्या होता है, सर्च करने पर इनको पता चलता है कि लूमी और उसकी फैमिली को चाइना में एक वॉर के दौरान एक गर्मी और प्यास की वजह से लूमी के अलावा उसके तमाम फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है और इसी का बदला लेने के लिए बॉक्स को लेकर वो टेंपल में चली जाती है। 7 दिन और 7 रात तक वो प्रे करती है। तभी चाइनीज डेमन उसको जवाब देते हैं और अचानक से फिर वो अमीर हो जाती है और उसके सारे के सारे दुश्मन मरने लगते हैं। फिर उनको ये भी पता चलता है कि 1922 में अचानक से लूमी खुद भी सुसाइड कर लेती है। और भी बहुत सी तहरीरें होती हैं जिनकी जीना को बिल्कुल भी समझ नहीं आती और वो उनकी पिक्स लेकर अपने फ्रेंड को सेंड कर देती है। वापसी पर जब क्लियर अपने डैड को देखती है कि वो कचरे में से चीजें कलेक्ट कर रहे होते हैं तो घर आकर अपनी 4 फिश भी मांग लेती है। वो ये विश मांगती है कि उसके डैड उसको कम एम्बैरेस किया करे। उधर जीना को उसका दोस्त रिप्लाई कर देता है जिसे पढ़कर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अब क्लियर के विश मांगने के साथ ही वो म्यूजिक बॉक्स फिर से ओपन होता है और खुद ही क्लोज भी हो जाता है। तो इधर जीना के घर की लाइट अचानक से चली जाती है, बिजली चमकती है। जीना फोन करने के लिए जब उठाती है तो उसके सिग्नल ही नहीं होते और वो बाहर को भागती है तो उसका फोन अचानक से नीचे गिर जाता है। फिर अंदर को भागती है और अचानक से इसके वहीं पे डेथ हो जाती है। नेक्स्ट डे जब रायन जीना से मिलने के लिए जाता है तो उसके डेड बॉडी के साथ साथ उसको वो ट्रांसलेशन भी मिल जाती है। वो स्कूल में जाके क्लियर से मिलता है और उसको बताता है कि क्या उसने अभी तक कोई विश मांगी है या नहीं मांगी है और बाकी डिटेल्स भी उसको बताता है। वो उसको बताता है कि हर विश के बाद किसी न किसी की मौत पक्की है और जब 7 विशेस पूरी हो जाएंगी तो उस इंसान की खुद की मौत हो जाएगी। लेकिन क्लियर इसकी बातों पर कोई तवज्जो नहीं देती, उसे सीरियसली नहीं लेती है और घर आकर अपनी 5th विश भी मांग लेती है। इसमें वो ये चाहती है कि वो स्कूल की मोस्ट पॉपुलर लड़की बन जाए। फिर रात में पॉल और क्लियर पार्टी में जाते हैं और वहाँ वो नोट करती है कि सब उसके फैन हो जाते हैं। अब नेक्स्ट डे जब क्लियर मिसेस डेनुका से मिलने के लिए जाती है तो उनके घर में इंटर होते ही उसे एक बहुत बुरी सी स्मेल आती है और जब वो किचन में जाती है तो वहाँ उसे उनकी लाश मिलती है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपने फ्रेंड्स को इस बॉक्स और इसके अपनी जितनी भी विशेष उसने मांगी होती है उनके बारे में बताती है। उसके फ्रेंड उसे बॉक्स को फेंक देने की सजेशन देती हैं जिसे वो मान लेती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। फिर वो तीनों फ्रेंड्स बाहर चली जाती हैं। मेरेडिथ थोड़ा सा टाइम निकालती है और फिर गेम खेलने के लिए ऊपर जाती है। जब वो रूम में जाने लगती है लेकिन लिफ्ट में इंटर होते ही थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और कुछ देर के बाद लिफ्ट नीचे आके गिर जाती है। लिफ्ट गिरने की वजह से मेरेडिथ की वहीं पे डेथ हो जाती है। इसका जिम्मेदार उसके फ्रेंड्स उसको ठहराती हैं। फिर डेन आता है जो कि क्लियर को अपने घर ले जाता है और उसे उन लोगों के बारे में बताता है जिनके बारे में थोड़ी देर पहले उसने सर्च किया था। ये 2 लोग होते हैं जिनके पास ये बॉक्स पहले होता था। एक अमेरिकन सोल्जर था जिसको वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान चाइना में ये बॉक्स मिला था, जिसके बाद वो अमीर हो गया था बट कुछ टाइम बाद इसने सुसाइड कर ली थी। लास्ट टाइम ये बॉक्स लॉरेंस नामी एक आदमी के पास था। वो पहले लॉटरी जीता, फिर उसने अपने क्रश के साथ शादी भी की और इनके बच्चे भी हुए थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद सब मरने लगे थे। फिर वो उसे बताता है कि जब 7 विशेस पूरी हो जाएंगी तो वो बॉक्स का डायमंड सोल को एज अ प्राइज वसूल करेगा।
अब वो दोनों इस बॉक्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश में लग जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन इसे कुछ भी नहीं कर पाते। फिर इसे फेंक देती हैं, यानी एक जगह पर रख देती हैं। नेक्स्ट डे वो बॉक्स वहाँ से गायब हो जाता है और सब चीज़ें क्लियर की लाइफ में बदलने लगती हैं। उनको वो मेंशन भी छोड़ना पड़ जाता है क्योंकि अंकल ऑगस्ट ने 10 साल से टैक्स नहीं भरा था। क्लियर के डैड भी कचरे से फिर से चीज़ें निकालने लग जाती हैं। स्कूल में डार्सी वापस आ जाती है और वो क्लेयर को तंग करने लग जाती है। पॉल भी क्लेयर को छोड़ के वापस अपनी गर्लफ्रेंड के पास चला जाता है। अब स्कूल में जॉन के लॉकर में वो बॉक्स क्लेयर को फिर से नजर आता है। जॉन को उसको समझाती है कि उसने ये बॉक्स क्लेयर की भलाई के लिए यहाँ पे छुपा के रखा है, बट क्लेयर उसकी बात को नहीं सुनती। फिर रेन भी वहाँ पे आ जाता है और क्लेयर को समझाता है कि उसको बॉक्स नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनती है। उसको अपनी नेक्स्ट विश मांगनी होती है, इसलिए वो कहती है कि मुझे एक और विश मांगनी है, सो मैंने बॉक्स लेके जाना ही है। सो फाइनली रेन मजबूर हो जाता है और वो उसको जाने देता है। घर आकर वो विश मांगती है कि उसकी मम्मी ने सुसाइड ना की होती, और वो फौरन देखती है कि उसकी मम्मी उसके सामने आ जाती है और सब मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होती है। फिर उसकी मॉम के रूम में जाती है तो देखती है कि मॉम की बनाई हुई पेंटिंग्स पड़ी होती हैं, जिनमें एक पेंटिंग उस बॉक्स की बनी होती है। जिससे उसको पता चलता है कि वो बॉक्स कभी उसकी मॉम के पास भी होता था और उसी वजह से उसकी मॉम ने सुसाइड भी की थी। और उसके 6 विश के बाद उसके डैड की मौत हो जाती है। वो गुस्से और गम की हालत में बॉक्स पर चिल्लाती है और विश मांगती है कि उसे वापस फर्स्ट डे में जाना है जिस दिन उसके पापा को वो बॉक्स मिला था। फिर वो सेम डे उसके सामने स्टार्ट हो जाता है। वो सुबह उठती है, सेम डे में उठती है और सब उसी तरह से हो रहा होता है। वो स्कूल जाती है, उसके डैड कचरे में से चीज़ें निकालते हैं। क्लियर ट्रैश में से वो बॉक्स निकाल कर बैग में डाल लेती है। वो स्कूल में रेन को वो बॉक्स देती है और कहती है कि बैग को खोले बगैर ही इस बॉक्स को तुमने कहीं जाके दबा देना है, और बदले में मुझसे डिनर का प्रॉमिस कर लेती है। फिर वो खुशी खुशी जब वापस लौट रही होती है तो अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है, क्योंकि 7 विश पूरी हो जाने के बाद फाइनल सोल उसी इंसान की दी जाती है जो कि विशेष मांगता है। फिर डेन जब बॉक्स को दफनाने लगता है तो वो बैग को खोल देता है और बॉक्स जब वो देख लेता है तो उसके चेहरे पर अजीब सी स्माइल आ जाती है और लगता है कि अब वो बॉक्स को नहीं दफनाएगा। इसी सस्पेंस के साथ मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। If you like the video, don't forget to subscribe my channel, like and comment in the comment section given below.